الرجيم كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. محترم حاضرین اور اسلامی خواتین، آج کے اس پروگرام میں اللہ رب العزت کے فضل سے میں آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارگاہ مجھے کتاب و سنت کے مطابق بات کرنے کی اور ہم اور آپ کو سننے کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. میں چند منٹ آپ کے سامنے جس موضوع پر باتیں کروں گا وہ ہے اسباب عذاب القبر. وہ کون سے گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے پر ایک مسلمان کو اس کی قبر میں بھیانک عذاب دیا جائے گا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے ہر ایک کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے. ایک شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ. موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ جس پیالے کو ہر شخص کو پینا ہے. ہر ایک کے موت کا جام تیار کر کے رکھا ہوا ہے. جیسے وقت پورا ہوگا آپ کے موت کا پیالہ آپ کے گلے میں اتار دیا جائے گا. والقبر باب کل نفس داخلہ. جیسے موت یقینی ہے ایسے ہی قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر شخص کو داخل ہونا ہے. نہ موت سے کسی کو بقا ہے نہ قبر سے کسی کو بقا ہونے والی ہے. اور قبر کے اندر اگر انسان برے اعمال کر کے گیا ہے، اگر انسان وہ برائیاں جن برائیوں کی وجہ سے قبر میں بھیانک عذاب ہونے والا ہے، اگر ہم اور آپ اس دنیاوی زندگی میں وہ برائیاں کرتے ہوئے مر گئے تو آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ جان لیں کہ قبر کا عذاب کیسا ہے. قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس عذاب کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے 2 جملے استعمال کیے. پہلا جملہ کہ مسلمانوں قبر میں جو عذاب ہوگا وہ عذاب کیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے صحابہ ما رأیت منظر قط الا والقبر افظع منه. کہو میرے صحابہ میری آنکھوں نے قبر سے بھیانک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ. آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے قبر سے زیادہ بھیانک اور قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا ہے. یہ پہلا جملہ ہے. اور دوسرا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر کے تعلق سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ لدعوت اللہ، اگر میں اللہ سے دعا کر دوں نا اے مسمعکم من عذاب القبر تو تم قبر کا عذاب اپنے کانوں سے سن لو گے. وہ مردہ وہ میت جو قبر میں لیٹا ہوا ہے جب اسے عذاب دیا جاتا ہے وہ کیسے روتا ہے، کیسے چیختا ہے، کیسے بلکتا ہے، کیسے آہو بکا کرتا ہے، تم اپنے کانوں سے اس عذاب کو سن لو گے. لیکن وہ میرے صحابہ میں ڈر رہا ہوں لولا اللہ تدافنوا، اگر تم اس آواز کو سن لو نا قیامت تک اپنے مردوں کو قبر میں دفنانے کی ہمت نہیں کر پاؤ گے. اللہ اکبر. یہ قبر کا عذاب ہے. انسان اگر اس عذاب کو سن لے تو مردے کو اپنے گھر میں رکھ لے گا، سڑا دے گا، پانی میں پھینک دے گا، آگ میں جلانا صبر کر لے گا، لیکن اپنے مردے کو قبر میں دفنانے کی ہمت نہیں کر پائے گا. آئیے عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر وہ گناہ جان لیں،
وہ جرائم جان لے کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے پر قبر میں بھیانک عذاب ہونے والا ہے، تاکہ ان گناہوں کو جان کر ہم اور آپ بھی قبر کے عذاب سے بچ سکیں۔ وقت بہت مختصر ہے، میں چند گناہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا گناہ جس کی وجہ سے قبر میں بھیانک عذاب ہوگا وہ گناہ ہے کسب الحرام اور اکل الحرام، حرام کی روزی استعمال کرنا، حرام کا کھانا استعمال کرنا۔ ایک مسلمان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے گھر میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حلال راستے سے ہے یا حرام راستے سے ہے، اس کے گھر میں جو انکم آ رہا ہے اس کا سورس کیا ہے، حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقوں پر آ رہا ہے۔ حرام کی جتنی قسمیں ہیں آپ اپنے سامنے رکھیں، وہ بینکوں کا سود ہو، وہ چوری کا مال ہو، وہ بے ایمانی کا مال ہو، کسی کا حق دبایا گیا ہو، اگر انسان حرام مال استعمال کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں۔ غالباً غزوہ خیبر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگ پر جا رہے ہیں، ساتھ میں اللہ کے رسول کا ایک نوکر بھی چل رہا ہے۔ جاتے ہوئے اللہ کے رسول کے اس غلام نے بیت المال سے ایک چادر اٹھائی اور اپنے بدن پر ڈال لی، ایک معمولی سی چادر۔ اس چادر کی قیمت کیا ہوگی، لیکن چونکہ بیت المال سے بغیر اجازت کے اٹھائی ہے نا، اب وہ چادر حرام کی ہو گئی۔ حرام کی چادر اوڑھ کر کے اللہ کے راستے میں جہاد پر گیا۔ ہاں آپ غور کریں کتنا بڑا عمل کرنے کے لیے گیا ہے، اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے نکلا ہے، لیکن بدن پر جو چادر ہے وہ حرام کے مال کی ہے۔ دشمنوں سے لڑتا ہے، قتال کرتا ہے، ایک کافر تیر مارتا ہے اور وہ غلام زمین پر گرا اور مر گیا۔ تمام صحابہ جنگ کے بعد جمع ہو گئے، کہا یہ دیکھو اللہ کے رسول کا یہ نوکر، اللہ کے رسول کا یہ غلام شہید ہو گیا، یہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے، اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی، اپنے بچوں کو یتیم کر گیا، اپنی بیوی کو بیوہ کر گیا، خاک و خون میں اللہ کے لیے قربان ہو گیا، کتنا بڑا عمل کر کے گیا ہے، فلان شہید، یہ تو شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کہا میرے صحابہ کلا، اسے شہید نہ کہو، اسے شہید نہ کہو، ان الشملہ، وہ حرام کی چادر جو اس کے بدن پر لپٹی ہوئی ہے نا، میں نے دیکھا ہے، لتشتعل علیہ نارا، آج وہی چادر اس کی قبر میں جہنم کی آگ بن کر کے بھڑک رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مرا ہے، اپنی قبر میں لیٹا ہے اور وہ حرام کی چادر آگ بنا کر کے اس کی قبر میں بھڑکا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں، حرام کی ایک چادر اس کی قبر میں جہنم کی آگ بن کر کے بھڑک رہی ہے۔ صحابہ نے سنا، صحابہ کانپ گئے، ایک صحابی نکلے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ہاتھ میں جوتے کا 2 تلہ ہے، جوتے کے نیچے جو تلہ لگتا ہے، شیرہ کان، جوتے کا معمولی تلہ ہے، اللہ کے رسول یہ میں نے بیت المال سے بغیر اجازت کے لے لیا تھا، لیکن آپ نے جو وعید سنائی ہے نا، یہ سن کر میں یہ حرام کا تلہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جوتے کا تلہ واپس لیتے ہیں اور اپنے صحابی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ میرے صحابی اچھا کیا، اچھا کیا، تم نے جوتے کا یہ تلہ واپس کر دیا، شراکان من نار، اگر تم اسے واپس نہیں کرتے تو یہ جوتے کا تلہ تمہاری قبر میں آگ بنا کر کے بھڑکا دیا جاتا۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ غور کریں، جوتے کا معمولی سا تلہ، ایک صحابی جس کی زندگی نمازوں سے، روزوں سے، قرآن کی قرأت سے اور تہجد کی ادائیگی سے، تمام نیکیوں سے مزین ہے، اس صحابی سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، او میرے صحابی اگر تم یہ تلہ رکھ لیتے تو تمہاری قبر میں آگ بن کر کے بھڑک رہا ہوتا۔
हम और आप गौर करें, ऐसा ना हो कि हमारे घरों की कमाई अगर हराम माल से हुई है, अल्लाह की कसम ये दुनियावी जिंदगी 60 साल की 70 साल की, फिर मरना है और अपनी कब्र में जाना है। अगर हराम की कमाई इस्तेमाल करके इंसान मर गया, वो नमाज पढ़ने वाला हो, रोजा रखने वाला हो, सदका खैरात करने वाला हो, वो कब्र के आजाब से महफूज नहीं हो सकता। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि ऐ मेरे सहाबा, लौ सल्लैतुम हत्ता तकूनु कल हनाया, ऐ मेरे सहाबा अगर तुम इतनी नमाजें पढ़ो कि नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी पीठ को टेढ़ी कर लो, जैसे कमान टेढ़ा हो जाता है, तीर चलाने वाला कमान जैसे टेढ़ा हो जाता है, तुम नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी पीठ टेढ़ी कर लो। वसुमतुम हत्ता तकूनु कल औताद, और इतना रोजा रखो कि रोजा रखते रखते तीर के जैसे पतले हो जाओ, गोश्त खत्म हो जाए बदन से। अल्लाह की इबादत में अपने आप को तोड़ डालो और रोजों से अपना गोश्त खत्म कर लो, इसके बावजूद लम युकबल ज़ालिका मिनकुम इल्ला बिवरइन हाजिज, अगर हराम माल से बचने का डर नहीं है, हलाल और हराम की तमीज नहीं करते हो, तो तुम्हारा ये अमल भी अल्लाह के यहां कबूल नहीं है। अल्लाहु अकबर, ये हराम माल की कबाहत है। अगर इंसान हराम की कमाई इस्तेमाल करता है, वो अल्लाह से तौबा करे, चूंकि मरना है और अपनी कब्रों में जाना है। तो पहली बुराई जिसकी वजह से एक मुसलमान को कब्र में भयानक अजाब होगा, वो हराम की कमाई। आइए दो और बुराइयां एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। दो बुराइयां इस हदीस के अंदर बताई गई है। जो मुसलमान इन बुराइयों में मुलव्विस होगा, उसे कब्र का अजाब भुगतना है। हदीस देखिए, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े या खच्चर पर बैठकर जा रहे हैं। सामने दो कब्र आई। कब्र के पास जब अल्लाह के रसूल पहुंचे तो अचानक अल्लाह के रसूल का वो घोड़ा बिदकने लगा, कूदने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े से उतर गए। उतरकर सवाल किया, ओ मेरे सहाबा, ये किस किस की कब्रें हैं? सहाबा ने बताया कि ये फला और फला की कब्रें हैं, और गालिबन दोनों मुसलमानों की कब्रें। कब्रों में जो दफन है मुसलमान हैं। और अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, ओ मेरे सहाबा, इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान, इनकी कब्रों में बड़ा भयानक अजाब हो रहा है। अजाब ऐसा है कि अजाब मैयत के रोने की वजह से, मैयत के चीखने और चिल्लाने की वजह से मेरा घोड़ा आगे नहीं जा पा रहा, वो पीछे हट रहा है, वो भाग रहा है, क्योंकि मैयत रो रहा है, बिलक रहा है। सवाल यह है कि उनकी कब्रों में इतना भयानक अजाब क्यों हो रहा है? वो कौन सा गुनाह करते थे, वो कौन सी गलती करते हुए मर गए, जिसकी वजह से कब्र को अल्लाह ने जहन्नम का गढ़ा बनाया है? अल्लाह के रसूल गुनाह बताते हैं, का वमा युअज़्ज़बानी फी कबीर, कहा अगर ये चाहते तो इन गुनाहों से बचना कोई बड़ी बात नहीं थी, आसानी से बच जाते। गुनाह क्या है? का इनमें से एक आदमी वो है यमशी बिन नमीमा, जो अपनी जबान से चुगली और गीबत किया करता था, अपनी जबान से एक दूसरे की बुराई किया करता था। जिस महफिल में बैठता तो लोगों की बुराइयां अपनी जबान से बयान करता। फला ऐसा है, उसका ये आलम है, उसका ये कैरेक्टर है, उसकी बेटी ऐसी है, वो ऐसा। जहां बैठता, महफिलों में हो, चौराहों पर हो, लोगों के दरमियान हो, अपनी जबान से लोगों की इज्जत व आबरू पर तीर चलाया करता था। नमाज पढ़ता होगा, रोजा रखता होगा, नेकियां करता होगा, लेकिन गीबत से अपने आप को नहीं बचाया ना, मर गया। आज अपनी कब्र में अजाब कब्र के अंदर सुलग रहा है। अल्लाह ने इसकी कब्र को जहन्नम का गढ़ा बनाया है गीबत करने की वजह से। का दूसरा आदमी वो है ला यस्तंजी मिनल बाउल, जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। पेशाब करता तो इस्तिंजा नहीं करता था, पेशाब करते हुए पानी या मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करता था। हम और आप मुहासबा करें, आज ये दोनों बुराइयां हमारे मुआशरे में किस कदर आम है। गीबत और चुगली, इंसान 15 मिनट की 20 मिनट की महफिल में बैठता है, अपनी जबान से तीर चलाता रहता है लोगों की इज्जत व आबरू पर। होटल में बैठा है, चाय का गिलास हाथ में है, चाय पी रहा है और लोगों की इज्जत व आबरू को घटा रहा है।
जिस महफिल में इंसान बैठता है गीबत चालू करता रहता है। ऐसे ही हमारी माएं और बहनें हैं, हमारे घरों में औरतों का भी यही हाल है कि औरतों की जबान उनके कंट्रोल में नहीं है। एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की चुगली और गीबत करना उनकी आदत बन चुकी है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि ये दुनियावी जिंदगी 60 साल की है, 70 साल की है, मरना है और अपनी कब्र में जाना है। अगर इस गीबत से हमने अपने आप को नहीं बचाया, अल्लाह हमारी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बनाने वाला है। तो ये दो बुराइयां हैं, गीबत करना और पेशाब के छींटों से ना बचना। अगर हम और आप ये दो बुराइयां करते हैं तो अल्लाह की कसम अल्लाह से तौबा करें, क्योंकि मरना है और मरने के बाद अपनी कब्रों के अंदर जाना है। तो ये दो बुराइयां इस हदीस के अंदर बताई गई। इसके अलावा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस है, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ने बड़ी सारी बुराइयां बताई हैं, जिन बुराइयों के करने पर कब्र में भयानक आजाब होगा। जिनमें से एक अलकिज़्ब, झूठ बोलना है। इंसान अपनी जबान से झूठ बोलता रहता है। आज हमारे मुआशरे में झूठ की बहुत सारी किस्में हैं। इंसान मजाक में लोगों को हंसाने के लिए, लतीफा बनाने के लिए, लतीफा सुनाने के लिए कि मेरी बातें सुनकर लोग हंसेंगे, मजेदार बातें बनाने के चक्कर में झूठ बोल दिया करता है। ऐसे ही इंसान झूठ को अपनी आदत में शुमार करता है। दिन के अंदर न जाने हम और आप कितनी बार झूठ बोलते हैं बिना ये सोचे कि मरना है और अपनी कब्र में जाना है, और ये झूठ हमारी कब्र में आग लेकर के आने वाली है। तो झूठ की बुराई अगर हमारे और आपके अंदर है, हम और आप इससे बचने की कोशिश करें। आइए आखिरी चीज बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। वो कौन सी नेकियां हैं अस्बाबुल मुंजिआ मिन आदाबिल कब्र, वो कौन सी नेकियां हैं जिनके करने पर अल्लाह हमारी कब्र में हमें और आपको कब्र के आजाब से बचाएगा। एक नेकी मैं बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। सिर्फ एक नेकी हम और आप यहां से लेकर के जाएं और उस पर अमल करें, ताकि हम और आप अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को अजाब कब्र से महफूज कर पाएं। वो नेकी क्या है? अस्सलात, नमाज की पाबंदी। नमाज की पाबंदी ये इंतहाई जरूरी है। तौहीद के बाद एक मुसलमान को नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, और ये नमाज हमारे और आपके कब्र में 3 रास्तों से काम आने वाली। ये नमाज हमें और आपको हमारी कब्र में 3 फायदे देने वाली है। वो मर्द हो या औरत हो, अगर हम और आप नमाज की पाबंदी करते हैं, खुश नसीब हैं। ये 3 फायदे हमें और आपको कब्र में मिलने वाले हैं। आइए वो फायदे मैं आपके सामने रखूं। नमाज का पहला फायदा कब्र के अंदर, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इंसान जब मर जाता है उसे उसकी कब्र में लिटाया जाएगा। मैयत कब्र में लेटी हुई है, तन्हाई है, अंधेरा है। कब्र अपने आप में बेजाते खुद एक अजाब है। कोई साथी नहीं, तन्हाई का आलम है, अंधेरे का आलम है, डर है, खौफ है, भयानक जगह है, तारीकी है। ऐसे आलम में जब फरिश्ता सवाल करने आता है, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इंसान डर जाएगा, घबराएगा, कब्र में परेशान होगा। एक खुशनसीब आदमी है, एक खुशनसीब ऐसा होगा जो कब्र में ना घबराएगा, ना डरेगा, ना परेशान होगा। वो आदमी कौन होगा? अल्लाह के रसूल कहते हैं फरिश्ता सवाल करेगा, ऐ बंदे मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? वो इंसान इत्मीनान के साथ बेखौफ होकर जवाब देगा, दाऊनी उसल्ली, फरिश्तों हटो, मैं दुनिया में नमाज की पाबंदी करके आया हूं, हटो, नमाज का वक्त हो गया है, मैं कब्र में नमाज अदा कर लूं, उसके बाद तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर, कितना बेखौफ है, कितने इत्मीनान के साथ जवाब देगा, फरिश्तों नमाज का वक्त है, मैं नमाज पढ़ लूं, उसके बाद तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तो मुसलमानों, अगर कब्र की घबराहट से बचना है, कब्र के डर से बचना है, नमाज को कायम करना होगा। नमाज का दूसरा फायदा कब्र के अंदर, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल अब्दा इज़ा उज़िया फी क़ब्रिही, इंसान जब मर जाता है उसे उसकी कब्र में लिटाया जाता है। व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, दफन करने के बाद लोग वापस आते हैं। मैयत को दफन करके जब लोग वापस आने लगते हैं तो अल्लाह उस मैयत को जाने वाले लोगों के जूतों की आवाज सुनाता है इबरत के लिए। ऐ इंसान, तू कब्र में लेटा है, आज तेरा बेटा तुझे कब्र में लिटा कर वापस जा रहा है।
तेरे रिश्तेदार, तेरे भाई, कोई तेरे साथ रुकने वाले नहीं है। सब दुनिया की सारी मोहब्बतें इंसान की कब्र पर आने के बाद खत्म हो जाती। कोई कब्र में आपके साथ रहने वाला नहीं। अब इंसान कब्र में अकेला है, तन्हा है, कोई साथी नहीं है, परेशान है। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुसलमानों, कब्र में आपको एक साथी मिलेगा, एक साथी मिलेगा। वो साथी कौन है? अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इन्ना सलात नूरुन फिल कुबूर, इंसान की नमाज इंसान के कब्र में नूर बन करके चली आएगी। अल्लाह अकबर। जहां माँ बाप साथ नहीं देने वाले, औलाद साथ नहीं देने वाली, बीवी घर में मौजूद है, अगर शौहर है तो घर पे चला आया, कोई नहीं है, अकेला लेटा हुआ है, अगर कोई वफादार साथी है तो इंसान की नमाज इंसान की कब्र में रोशनी लाएगी, नूर बन करके इंसान की कब्र में आएगी। ये नमाज का दूसरा फायदा कब्र में मिलने वाला है। नमाज का तीसरा फायदा जो इंसान को कब्र में मिलेगा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, मुसलमानों, अगर दुनिया में तुम नमाज पढ़ते हो, खुश नसीब हो, खुश हो जाओ, बशारत है तुम्हें, नमाज का ये फायदा कब्र में इंशाअल्लाहुल अजीज हमें और आपको भी मिलने वाला है। तीसरा फायदा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इंसान जब कब्र में लिटाया जाएगा, मैयत है, कब्र में लेटा हुआ है, अजाब का फरिश्ता अजाब देने के लिए आएगा, हाथ में हथौड़े हैं, गुर्ज हैं, तमाम असलहे लेकर जब कब्र में दाखिल होगा, जैसे ही फरिश्ता अजाब देने के लिए इंसान के सर के पास पहुंचेगा, सर के पास जब फरिश्ता आएगा तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, वकानतिस सलातु इंदा रासिही, इंसान की नमाज उसी सर के पास बैठी हुई होगी। अल्लाह अकबर। ये हमारी और आपकी नमाज हमारे सर के पास बैठ जाएगी और वो नमाज फरिश्ते से कहेगी, मा क़िबल मदखल, मा क़िबल मदखल, ऐ फरिश्ते, तुम अल्लाह के इस बंदे को अजाब नहीं दे सकते। पूरी दुनिया सुबह के वक्त, फजर के वक्त जब लिहाफ और रजाई के मजे लेती थी, पूरी दुनिया नींद के आगोश में होती थी, मुअज्जिन पुकारता था, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ लोगों, नमाज नींद से बेहतर है। ये इंसान अपनी रजाई उठाकर, कंबल उठाकर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता था। नमाज की बरकत से अल्लाह एक मुसलमान को कब्र के अजाब से महफूज कर लेगा। ये नमाज के 3 फायदे हैं जो हमें और आपको कब्र में मिलने वाले हैं, और बहुत सारी नेकियां हैं जो मुसलमानों के कब्रों में काम आने वाली है। चूंकि मौका नहीं है, इंशाअल्लाहुल अजीज कभी वक्त मिला तो मैं आपके सामने और बातें मजीद रखूंगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। खुलासे कलाम यह है कि मुसलमानों, हम दुनियावी जिंदगी गुजारते हुए ये ख्याल जरूर रखें कि मरना है और मरने के बाद हमें और आपको अपनी कब्रों में जाना है। ऐसा ना हो कि हम मुसलसल उन गुनाहों में डूबे रहें जो गुनाह कब्र में भयानक आजाब दिलाने वाले हैं। अगर हम और आप वो गुनाह करते हैं, अल्लाह से तौबा करें और अहद करें कि उन गुनाहों के करीब न जाएं, ताकि हम और आप अपने आप को कब्र के भयानक अजाब से बचा पाएं, और बिलखुसूस वो नेकियां करते रहें जो नेकियां कब्र में काम आने वाली हैं। बिलखुसूस नमाज की पाबंदी तो कम से कम हर इंसान का पूरा घराना अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप और बीवी के साथ, सब लोग अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाने के लिए कम से कम नमाज की पाबंदी करना तो जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हमें उन बुराइयों से महफूज फरमाए जो बुराइयां कब्र में आजाब दिलाने वाली हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वो नेकियां करने की तौफीक दे जो नेकियां हमारे कब्र में काम आने वाली हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।